Dear students, we are going to start our next lecture, lecture 21 of Programming Fundamentals. In the last lecture, we were working on string library functions. In this lecture, we will implement string library functions. Write down a program to calculate the length of a string. For example, if we have a string str and it contains a string University of Education, so what we need to do, we need to count the number of characters. Length means number of characters in a string. So when we are talking about this string University of Education, we have 23 characters including spaces. For example, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and then spaces 12, 13, and similarly again space would be counted in this string. So string length function simply count the number of characters in a string including alphabets, spaces, numbers or symbols. It would simply count all the characters including all these things. So in this string we have 23 characters including spaces. So the length of this string University of Education is 23. Let's implement this function. Sorry. For example, we have a string character array. We have kept it blank over here. We are simply going to initialize this string. Character array is initialized with the string University of Education. So this is the value that has been assigned to the character array str. We have two variable I that is initialized to 0. Similarly, length is initialized to 0. And we have while loop. While loop, the condition of while loop is str of I not equal to \0. Over here \0 indicate null character. Null character means the end of the string. So whenever there is the end of the string, we simply place \0 over there, or computer places \0 over there. So whenever the string is ended, it is ended with \0. So \0 is the sign of end of the string. So if you want to check or want to go up to the end of the string, the symbol that is used or that indicates the end of the string is \0. So this loop would continue until we have \0 and \0 would come at the end of the string. So first time str of 0 not equal to \0 mean str of 0 would be u, then str of 1, then str of 2. So this loop would continue from 0 up to the number of character when we will get \0 other than any other character. So whenever the string goes on, we would not get \0, but when this string ends, we would have \0. So this loop would continue until it gets \0. So when there is \0, this loop simply terminates. So this loop would start from the 0th character u, and simply when I is equal to 1, it would go to n, then I, then v. So I is a counter or index number that changes or upgraded with the loop cycle. So when we will get \0 at the end of this string, that is the indication that string is terminated. So when the string ends, we will get \0 and this condition gets false. This condition is true until we do not get \0. So when we will get \0, this loop would terminate. Till that, it simply added a simple number, or you can say simply add 1 in the length variable. First time it is 0, then it is 1, then 2. So whenever it counted a character in this string, it simply add in the length. So length start from 0 and goes up to 1, 2, 3, 4, 5, 6 and until it get \0. When \0 comes, this loop terminates
and you will get the total number of character, and this total number of character get counted in the word length. So length is the variable that is counting the number of characters. So until \0 comes, this simply counts, mean a one increment is in the variable length. So it is started from 0, then 1, 2, 3. For each character the value of length increased by 1. So when this string gets end, we will have the total number of character in this variable length. So after this loop, when we will display the variable length, we will get the total number of character present in the string str. So this is how we implement to count the number of characters in a string. Similarly, in another way, if we do not initialize a string, or you can say if we do not initialize a character array, we have a character array str of 25 size, 25 characters का हमने ये 25 लेंथ का हमने array डिक्लेयर किया, एंटर स्ट्रिंग की वैल्यू इनपुट की. अब यहाँ पे हमने स्ट्रिंग इनिशियलाइज नहीं करवाया, बल्कि हमने गेट से उसे इनपुट किया. जिस तरह से हम आम नंबर को सीन से इनपुट करते हैं, इसी तरह से यहाँ पे हमने गेट्स का फंक्शन यूज़ किया और उसके लिए हेडर फाइल यूज़ की है stdio.h. तो जब भी आप गेट्स का फंक्शन यूज़ करें तो ये हेडर फाइल ज़रूर इंक्लूड करें stdio.h. अब जब गेट्स का फंक्शन आप यूज़ करेंगे तो ये स्ट्रिंग की वैल्यू इनपुट करेगा, और जब तक आप एंटर की प्रेस नहीं करेंगे ये स्ट्रिंग की वैल्यू इस str में जो है ना वो इनपुट होती रहेगी. तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया i, जिसको 0 पे इनिशियलाइज किया, लेंथ को भी 0 पे. ये उसी तरह से हमने जो पिछले प्रोग्राम में किया, सिर्फ थोड़ी सी तब्दीली की है कि वहाँ पे हमने स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कर दिया था, यहाँ पे स्ट्रिंग इनिशियलाइज नहीं किया बल्कि यूज़र से इनपुट लिया. तो ये उसी तरीके से हमने लूप लगाई है. ये इंडिकेशन याद रखिएगा कि एंड ऑफ द स्ट्रिंग जो है वो रिप्रेजेंट होता है \0 या नल करैक्टर से. तो जब तक \0 नहीं आता, इसका मतलब है कि वो स्ट्रिंग जो है वो कंटिन्यू है, और जब \0 आएगा दैट वुड बी द एंड ऑफ द स्ट्रिंग. तो ये उसी तरीके से लूप चलेगी और लेंथ वेरिएबल में काउंटिंग होती जाएगी, एक एक आपका करैक्टर काउंट होता जाएगा, और जब आपका \0 आ जाएगा तो लूप टर्मिनेट हो जाएगी और लेंथ की वैल्यू जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी. इसका आउटपुट चेक करें. ये आउटपुट है एंटर स्ट्रिंग, और ये हमने स्ट्रिंग एंटर किया गेट से इमरान स्पेस अब्बास स्पेस काज़मी, स्पेसेस भी हमने एंटर किया, और उसके बाद काज़मी पे हमने एंटर की प्रेस की, और जब एंटर की प्रेस की तो उसने इसकी लेंथ कैलकुलेट की, एंड द लेंथ इज 17, एंड दिस 17 इंक्लूड दिस स्पेसेस टू. तो ये दो स्पेसेस भी इसमें इंक्लूड की. 5 ये करैक्टर हैं, 5 ये हैं, 5 ये हैं, 15 प्लस ये आपकी दो स्पेसेस. तो ये जो हमने फंक्शन जो है वो डेवलप किया है, ये बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके नंबर ऑफ करैक्टर्स जो है वो काउंट हो रहे हैं इंक्लूडिंग स्पेसेस, और ये लूप जो है वो स्पेस को भी काउंट करेगी, और ये उस वक्त तक लूप चलेगी जब तक उसे \0 नहीं मिल जाता. जैसे ही उसे \0 मिलेगा दैट वुड बी द इंडिकेशन दैट स्ट्रिंग इज एंडेड ओवर हेयर. तो वहाँ पे ये लूप टर्मिनेट हो जाएगी, और लेंथ जो है वो आपकी जितनी कैलकुलेट हो चुकी है, टोटल नंबर ऑफ करैक्टर्स जितनी भी उसमें स्पेसेस हैं, वो उसके साथ जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा. तो ये देखें, ये हमने जो है वो स्ट्रिंग एंटर किया. ये जो स्ट्रिंग एंटर किया ये गेट से इनपुट हुआ, और एंटर की प्रेस की हमने. जैसे ही हमने एंटर की प्रेस की तो स्ट्रिंग के एंड पे \0 जो है वो प्लेस हो गया, और जब काउंटिंग की तो उसने \0 से पहले जितने भी करैक्टर्स बन रहे थे उनको काउंट किया लेंथ वेरिएबल में. तो जब भी कोई करैक्टर काउंट करता था तो लेंथ में 1 का इजाफा कर देता. तो यहाँ पे इसने 1 by 1 लेंथ का वेरिएबल जो है वो आपका अपग्रेड होता गया 1 by 1, और इस तरह से इसने जब तक उसे \0 नहीं मिली तब तक जितने भी करैक्टर आते गए तो ये लेंथ अपग्रेड होती गई. तो सिंपली ये है कि यहाँ पे आपके टोटल नंबर ऑफ करैक्टर्स जो है वो काउंट कर दिया इंक्लूडिंग स्पेसेस. अब यही काम जो है वो अगर हमें स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन से करना पड़े तो हम इसे कैसे करेंगे. दैट मेड वेरी सिंपल. यू कैन से कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन हैज़ हेल्प्ड अस अ लॉट ओवर हेयर. इसके लिए हमें कोई लूप नहीं लगानी पड़ेगी, हम सिंपल स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन यूज़ करेंगे strlen, और ये strlen का फंक्शन हमें जो है वो टोटल नंबर ऑफ करैक्टर्स जो है वो काउंट करके खुद ही रिटर्न कर देगा
हमें कोई कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी, कोई लूप नहीं लगानी पड़ेगी। तो ये देखें, ये उसी तरह से हमने जो है वो एक स्ट्रिंग करैक्टर अरे डिक्लेयर किया, स्ट्रिंग ऑफ 25। इसमें हमने इसका साइज़ रखा है इस अरे का, टाइप इसकी करैक्टर रखी है, और यहाँ पे गेट स्ट्रिंग का मतलब यह है कि स्ट्रिंग की वैल्यू इनपुट की। उसके बाद ये देखें कि स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन लगा हुआ है strlen, और स्ट्रिंग की वैल्यू जो है वो एज आर्गूमेंट पास हो रही है इसी स्ट्रिंग की जो हमने इनपुट किया। यही स्ट्रिंग यहाँ पे जो है ना वो आपका एज ए आर्गूमेंट पास हो रहा है। तो ये स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन क्या करेगा कि इस स्ट्रिंग में जितने भी नंबर ऑफ करैक्टर्स होंगे वो काउंट करके रिटर्न करेगा इस लेंथ वेरिएबल को, जो कि इंटीजर टाइप का। तो यहाँ पे हमें कोई जो है वो कोडिंग या कोई लूप जो है वो लगानी नहीं पड़ेगी। स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन ऑलरेडी डिफाइन है स्ट्रिंग डॉट एच में। तो जब भी आप स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन यूज़ करें तो उसके लिए स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल यूज़ करें, क्योंकि इसकी जो डेफिनेशन है स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन की वो इस स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल में मौजूद है। आप सिंपली स्ट्रिंग लेंथ के फंक्शन को कॉल करें और उसमें एज आर्गूमेंट स्ट्रिंग पास करें, तो उस स्ट्रिंग में जितने भी नंबर ऑफ करैक्टर्स होंगे वो सारे काउंट करके एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, एंड दैट वैल्यू वुड बी द टोटल नंबर ऑफ करैक्टर्स इन द स्ट्रिंग। तो यहाँ पे ये स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन हमने यूज़ किया। लेंथ में आपकी जो वैल्यू है वो इसके टोटल नंबर ऑफ करैक्टर्स होंगे। तो जब लेंथ को आप जो है वो डिस्प्ले करवाएंगे तो आपकी स्ट्रिंग की लेंथ मीन नंबर ऑफ करैक्टर्स जो है वो डिस्प्ले करेगा। ये है जी आपका इसका आउटपुट। उसी तरीके से एंटर स्ट्रिंग, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन आपने स्ट्रिंग इनपुट किया तो 23 नंबर ऑफ करैक्टर्स जो है वो इसने रिटर्न किए हैं। तो अब यहाँ पे देखें कि ये वाला काम आपका किसने किया है, strlen। तो यहाँ पे आपको ये लूप नहीं लगानी पड़ी जो आपने यहाँ पे लगाई है। यहाँ पे आपको ये लूप वाला प्रोसीजर करना पड़ा, लेकिन ये इस प्रोसीजर से को बहुत ज़्यादा आसान कर दिया आपके बिल्ट इन फंक्शन ने, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन ने, strlen ने। सिंपल स्ट्रिंग उसमें आप जो है वो उसकी पैरेंथेसिस में आप लिखें या उसका स्ट्रिंग आर्गूमेंट पास करें, तो आपको टोटल नंबर ऑफ करैक्टर काउंट करके रिटर्न कर देगा एक इंटीजर वैल्यू, एंड दैट वैल्यू वुड बी डिस्प्लेड एज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। Similarly, the other string function, string copy, that is basically used to copy one string to another string। एक string से दूसरे string में copy करने के लिए हम string copy का function use करते हैं। इसमें हम देखें कि दो हमने character array लिए, एक str1 और दूसरा str2। दोनों character array को हमने 25 साइज पे सेट किया। उसके बाद एंटर स्ट्रिंग, हमने स्ट्रिंग वन, जस्ट वन स्ट्रिंग जो है वो इनपुट किया, गेट्स किया str1। उसके बाद स्ट्रिंग कॉपी का फंक्शन, टारगेट और सोर्स। जिस में कॉपी करना है उसको आपने पहले लिखना है और जिसको कॉपी करना है उसको बाद में लिखना है। तो हमने str1 को कॉपी करना है str2 में। तो ये देखेंगे हमने इनपुट जो है वो सिर्फ एक स्ट्रिंग str1 किया है, और यहाँ पे strcpy का फंक्शन क्या करेगा कि str1 के करैक्टर्स को कॉपी कर देगा str2 में। तो अगर आप इसको चेक करना चाहें तो आप डिस्प्ले करवाएं। फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग 1 को आप डिस्प्ले करवाएंगे तो वो वही एग्जैक्ट स्ट्रिंग रिटर्न करेगा जो आपने इनपुट किया, और जब स्ट्रिंग 2 को आप पुट्स करवाएंगे, डिस्प्ले करवाएंगे, तो ये आपको जो स्ट्रिंग 1 वाला स्ट्रिंग है वो रिटर्न करेगा, वो डिस्प्ले करेगा। मीन टू से कि जो आपने str1 में स्ट्रिंग एंटर किया वही कॉपी हो जाएगा आपके str2 में। तो जब आप str1 और str2 दोनों को डिस्प्ले करवाएंगे तो दोनों में सेम स्ट्रिंग होगा। उसकी वजह यह है कि आपने str1 को कॉपी कर दिया str2 में। तो इसका रिजल्ट चेक करें। ये देखें, आपने स्ट्रिंग एंटर किया, str1 में आपने पाकिस्तान की वैल्यू दी, और जब आपने str1 और str2 डिस्प्ले करवाया तो दोनों में पाकिस्तान डिस्प्ले हुआ, क्योंकि आपके strcpy के फंक्शन ने str1 को कॉपी कर दिया str2 में। अब str1 में भी पाकिस्तान है और str2 में भी पाकिस्तान है, क्योंकि इसने कॉपी किया है। तो ये देखें, हम यहाँ पे जब उन्हें आप पुट्स करवाते हैं तो str1 को पुट्स करवाएंगे तो उसमें भी पाकिस्तान डिस्प्ले हुआ है, और str2 को पुट्स करवाएंगे तो उसमें भी पाकिस्तान डिस्प्ले हुआ। फिर है जी हमारे पास अनदर फंक्शन स्ट्रिंग
स्ट्रिंग कैट इज बेसिकली यूज फॉर कनकैटिनेशन, अपेंड करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए, जोड़ने के लिए, दो स्ट्रिंग्स को आपस में इकट्ठा करने के लिए, कंबाइन करने के लिए आप यूज़ करते हैं स्ट्रिंग कैट का फंक्शन। तो इसमें भी हमारे पास ये देखें, हमने दो स्ट्रिंग्स जो है वो डिक्लेयर किए, एक str1 और दूसरा str2, दोनों करेक्टर अरे हैं। पहले str1 को इनपुट किया गेट से, फिर str2 को इनपुट किया गेट से, और strcat का फंक्शन क्या करेगा कि str2 को str1 के साथ कनकैट कर देगा, अपेंड कर देगा। तो जो करेक्टर str2 के हैं वो str1 के साथ जो है वो अपेंड हो जाएंगे। तो str1 में जो है ना वो कॉम्बिनेशन होगा, अपने करेक्टर्स भी होंगे प्लस जो str2 के करेक्टर्स हैं वो भी इसके साथ जो है वो अपेंड हुए होंगे। तो आप जब str1 को पुट्स करवाएंगे तो अब str1 में इसके अपने करेक्टर भी होंगे और str2 के करेक्टर्स भी होंगे। ये आप चेक करें इसका आउटपुट, ये देखें, एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग में मैंने str1 में आई लव एंटर किया और फिर एंटर सेकंड स्ट्रिंग में मैंने पाकिस्तान एंटर किया। तो जब str1 को मैंने डिस्प्ले किया तो str1 ने आई लव और फिर पाकिस्तान, मीन ये जो पाकिस्तान था ये str2 में था, तो इसको अपेंड कर दिया गया, कनकैट कर दिया गया आई लव के साथ। तो अब str1 जो है वो एक कॉम्बिनेशन बन चुका हुआ है दोनों स्ट्रिंग्स का। तो ये इसका अपना पार्ट था और प्लस इसने str2 के करेक्टर्स को भी इसके साथ जोड़ दिया। तो अब str1 में जो है वो अपने करेक्टर्स भी हैं और उसके आगे कनकैट हुआ सेकंड स्ट्रिंग भी उसमें ऐड हो चुका हुआ है। तो ये strcat का फंक्शन क्या करता है, बेसिकली str1 के करेक्टर्स के बाद str2 के करेक्टर्स को कनेक्ट कर देता है या ऐड कर देता है। Then we have another function, string comparison. String comparison function is basically used to compare two strings, and it simply checks whether the strings are identical or not. If the strings are identical, exactly similar, then it would return a number 0, and if they are somehow different from each other, then it would return any other number other than 0. So 0 would be returned only when two strings are identical. अगर स्ट्रिंग्स में कोई किसी किस्म का भी डिफरेंस है, अगर उनकी लेंथ में डिफरेंस है या उनके करेक्टर्स का डिफरेंस है या इवन उनमें अपर केस या लोअर केस का डिफरेंस है, तो भी ये ज़ीरो रिटर्न नहीं करेगा। स्ट्रिंग कंपैरिजन का फंक्शन सिर्फ उस वक्त ज़ीरो रिटर्न करेगा अगर दो स्ट्रिंग्स जो है वो एग्जैक्टली सिमिलर होंगे। अगर उनमें लिटिल बिट भी डिफरेंस है तो ये ज़ीरो रिटर्न नहीं करेगा। तो आमतौर पे पासवर्ड जो है वो चेक करने के लिए या मैच करने के लिए हम स्ट्रिंग कंपैरिजन का फंक्शन जो है वो यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हमारा बिल्ट इन फंक्शन क्या करता है कि दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर कर लेता है कि एग्जैक्टली सिमिलर हैं या नहीं है। तो अगर ज़ीरो रिटर्न हो जाए तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे दोनों स्ट्रिंग्स जो है वो एग्जैक्टली सिमिलर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने गेट्स किया str1 और फिर str2, दोनों स्ट्रिंग्स जो है वो हमने गेट्स किए और उसके बाद strcmp स्ट्रिंग कंपैरिजन का फंक्शन ये कंपेयर करेगा str1 और str2 को। अगर str1 और str2 दोनों स्ट्रिंग्स एग्जैक्टली सिमिलर हुए तो i की वैल्यू 0 होगी, मीन ये 0 रिटर्न करेगा i को। और अगर इनमें किसी किस्म का भी कोई डिफरेंस हुआ, लिटिल बिट डिफरेंस होने की भी सूरत में i की वैल्यू अदर देन 0 होगी, depending upon the difference. So please keep it in mind, only when the strings are identical the value of I would be 0. So अगर 0 आती है तो इसका मतलब ये है कि दोनों स्ट्रिंग आइडेंटिकल है, और अगर उनमें कोई भी डिफरेंस आता है तो वो इसका मतलब होगा कि I की वैल्यू 0 नहीं है। तो आप चेक कर लें, यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दी इफ़ I इक्वल टू 0, कंपेरिजन हमने किया डबल इक्वल से, इक्वल टू 0। अगर i की वैल्यू 0 के बराबर है then strings are identical, and if the value of I is not equal to 0, either greater than or lesser than whatever, so the strings are different. So the only situation when the strings are identical is when I equal to 0. अगर I की वैल्यू other than 0 आ गई तो strings identical नहीं है। तो हमने ये कंडीशन रखी है
कि अगर i की वैल्यू 0 आती है तो स्ट्रिंग्स आइडेंटिकल है, लेकिन अगर i की वैल्यू 0 नहीं आती है एल्स की सूरत में स्ट्रिंग्स आर डिफरेंट। आउटपुट चेक करें जी। एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग Pakistan, enter second string again Pakistan. So there is a little difference between two strings, first string and second string. We have capital P over here. So whenever there is a little bit difference, even a character mismatch, even in their case, means smaller case or capital case, even then the codes are different. So the strings are different, they are not identical. एक भी डिफरेंस हो जाता है लेंथ में या उनके केस में तो स्ट्रिंग्स आर डिफरेंट, मीन द वैल्यू ऑफ आई वुड बी अदर देन 0। और इसी तरह से अगर हम इस प्रोग्राम को दोबारा रन करें और हम पाकिस्तान की वैल्यू जो है वो सेम कर दें, यहाँ पे भी पाकिस्तान सेम है, फर्स्ट कैरेक्टर अल्फ़ाबेट जो है वो कैपिटल है, यहाँ पे भी पी कैपिटल है, तो जब ये आइडेंटिकल होंगे तो ये 0 रिटर्न करेगा। तो फिर देखें स्ट्रिंग्स आर आइडेंटिकल। तो एक कैरेक्टर का मिसमैच हुआ था तो यहाँ पे उसने स्ट्रिंग डिफरेंट कर दिया था, सिंपल एक करैक्टर मिसमैच हुआ था। तो यहाँ पे हमने देखेंगे जी दोबारा प्रोग्राम को रन किया तो P जो है वो कैपिटल कर दिया, तो स्ट्रिंग्स आर आइडेंटिकल। तो ये बेसिकली स्ट्रिंग कंपैरिजन का फंक्शन जो है वो दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करता है और चेक करता है कि वो आइडेंटिकल हैं या नहीं है। आइडेंटिकल मीन एग्जैक्टली सिमिलर। तो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव एन असाइनमेंट। Write down the programs for string length, string comparison, string copy, string n copy, string cat, string n comparison, but you do not need to use standard library function. Rather you have to develop by their own. तो आपने यहाँ पे लाइब्रेरी फंक्शन जो है वो यूज़ नहीं करने, विदाउट यूजिंग लाइब्रेरी फंक्शंस आपने इनके कोड, इनके प्रोग्राम्स जो है वो ख़ुद बनाने हैं। चाहे आप जो है वो यूज़र डिफाइंड फंक्शन करें या इसका सिंपल मेन में प्रोग्राम बना दें, लेकिन आपने ये स्ट्रिंग लेंथ तो मैंने ऑलरेडी आपको कर दिया था। स्ट्रिंग कंपैरिजन, स्ट्रिंग कॉपी, स्ट्रिंग एन कॉपी, स्ट्रिंग कैट और स्ट्रिंग कंपैरिजन, ये आपने जो है ना इनके प्रोग्राम जो है वो ख़ुद लिखने हैं और उसमें आपने स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस का इस्तेमाल नहीं करना। ये आपकी असाइनमेंट है जी। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में या नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये असाइनमेंट्स डिस्कस करूँगा। अगर आप लोगों से ना हुई तो मुझे बताइएगा, बहरहाल मैं इसका कोड जो है वो डेवलप कर दूँगा। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।